Namaskar and welcome to this exciting episode of Sattology Debunking Mythology. Sat means truth, Logos means a study or science, Sattology means science or study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake, lie, or imagination. Now, I have a very, very special guest today, and uh, and he is an veteran of Indian Navy. So we will discuss with him about the new military alliances and military situation all over the world. Without delay, let us welcome Officer Manan Bhat. Welcome. Uh, Namaste. It's glad to be here, Namaste, Aditya ji. namaste and Jai Hind. जय हिंद. तो इस बार हमारा जो ट्रांसलेशन सिस्टम है वर्क्स वेरी वेल, तो हम हिंदी इंग्लिश दोनों में बात कर सकते हैं because our translation is based on the Apple some software they have put there which is works very well, and so Americans also can understand. So and Indians can also understand because we always get a complaint that Hindi mein baat karo, English mein baat karo, Hindi mein baat karo. So we get all kinds. So we have modified some things here. So my first question is, if you look at the Ukraine-Russia conflict, we were talking about it last time, and suddenly we see the entire Western media is quiet, and Russia is also emphatic that we have done a victory and we are covering the entire east of Ukraine. So from an Indian Navy point of view, military point of view, how do you see this entire conflict today? From where it started and where it is today? The conflict laid bare the claims of NATO in open. NATO was meant to be the only security provider to the nations who have signed the alliance, signed for the alliance. But the Russia's invasion of Ukraine, it has clearly pointed out quite a few things which the NATO likes. Or if I say that Russia has the advantage that Russia has in this conflict has always been the man on the ground, and although US couldn't intervene at all in the conflict, and neither did NATO, because Ukraine was not a signee to the NATO, but they also had if at all they would have tried this, they would have lost their face. ये उनके लिए बहुत बड़ी हार होती है, और उनकी ऐसी किरकिरी जैसे कि यूएस की अफगानिस्तान में हुई थी जब उन्हें पीछे हटना पड़ा था, वैसे ही किरकिरी उनकी नाटो की और यूएस की वहां होती, यूक्रेन में होती, क्योंकि उनके पास लड़ने के लिए मैन ऑन ग्राउंड नहीं है. आप किसी भी वॉर को एक्सटेंड कर सकते हो, आप किसी भी वॉर में कितने भी बेहतर से बेहतर इक्विपमेंट आपके पास हो सकते हैं, बट nothing can compensate for a good number of men on ground. और दूसरा आर्मड कोर, जो कि रशियन टैंक्स है, जो कि उस इन्फेंट्री को सपोर्ट कर रही है, और जिस तरह से यूक्रेन दिन ब दिन गिरता जा रहा है, दिन ब दिन एक के बाद एक, लुहांस्क के बाद एक, डोनेट्स्क, और ये जो इनका लिबरेशन हो रहा है. So there are no surprises here. ये लोग, although Russia is bleeding heavily in terms of losses in man and equipment, but no war is easy, and and battles are not free. So it does happen. But in any case, Ukraine is losing in a big way. If they would have seen this earlier, they might have fought for some diplomatic sort of a solution for this issue, because आपको कितना भी यूएस से सपोर्ट मिले, चाहे वेस्टर्न कंट्रीज और यूरोप से सपोर्ट मिले, चाहे इवन नाटो से सपोर्ट मिले, मिलिट्री हार्डवेयर कैन नॉट सफाइस फॉर मैन ऑन ग्राउंड. तो ये बहुत बड़ा लेसन है, not only for the European countries and US and the members of NATO, but also for India, because ये कहा जाने लगा था कि जो मॉडर्न वॉर्स होंगी, जो फ्यूचर वॉर्स होंगी, दे विल बी वेरी क्विक, और बहुत जल्दी रिजोल्यूशंस होंगे, मैन ऑन टेक्नोलॉजी पे लड़ी जाएंगी. बट अभी हमने देखा है कि अगर दो सामने वाले नेशंस, अगर दोनों न्यूक्लियर आर्म नेशंस नहीं है, और जो न्यूक्लियर वाला एस्केलेशन लेडर पे नहीं जाता है मैटर, तो चूंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लोगों ने देखा था कि जापान के ऊपर यूएस ने
न्यूक्लियर मिसाइल डाली और उसके बाद में न्यूक्लियर बम डाले और उसके बाद में बहुत जल्दी वर्ल्ड वॉर जो है खत्म हो गया, एक सडन डेथ जैसे कहते हैं, उस हिसाब से जैसे फुटबॉल में होता है उस तरह वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। तो वो चीज क्योंकि एस्केलेशन लेडर कहीं जा नहीं रहा है और रशिया कभी अपने नेबरिंग कंट्री पे न्यूक्लियर लगता नहीं है कि कोई न्यूक्लियर आर्म यूज करेगा, बिकॉज दे आर बोथ नेबरिंग ईच अदर, और उसका इम्पैक्ट जो है वो उस पे भी, रशिया पे भी आएगा। तो उस हिसाब से एक कन्वेंशनल टाइप का वॉर लड़ा जा रहा है, और जिसमें कि एयर सुपीरियरिटी मोस्ट ऑफ द टाइम रशिया के पास रही है। और दूसरा अभी तो ये हाल है कि मैं देख रहा हूँ कि रशिया उसके पास जो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है पुराने वाला, जो अभी S-400 है, उससे पहले वाला जो सिस्टम है S-300, उससे भी ग्राउंड टारगेट्स के ऊपर उस मिसाइल्स में थोड़ा सा टारगेट सिस्टम को मॉडिफाई करके ग्राउंड टारगेट्स उनको दे रहा है। तो हम देख रहे हैं कि रशिया के लिए जो इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा यही है कि वो ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी गेन करते रहें। ऑल्दो चूंकि यूक्रेन के पास अभी टेक्निकल सुपीरियरिटी है और यूएस कंटिन्यूअसली उनको जो हेल्प एड है वो मिलिट्री एड है वो सप्लाई कर रहा है, खास करके हार्डवेयर सप्लाई कर रहा है। तो यूक्रेन इज होल्डिंग बैक, बट कहते हैं ना कि दी यूक्रेन इज अ कंट्री इज इट्स पीपल, नॉट द लैंड। तो तो जो लोग हैं दे आर लूजिंग इट, उनकी बहुत ज्यादा सोल्जर्स की जान जा रही है, साथ साथ में लोग जो यूक्रेन के जो रहने वाले जो लोग थे उनका, अदर देन दी सोल्जर्स, एल्डरली विमेन और चिल्ड्रन, वो तो बहुत सालों बहुत महीने पहले जब वॉर शुरू हुआ था, पहले एक आध महीने 2 महीने में ही कंट्री छोड़ के जा चुके हैं। तो इस इन खंडरों को प्रोटेक्ट करने के लिए किस तरह की ये लड़ाई को खींचने की बात हो रही है, और क्यों एक एक कंसाइंस पे आके एक कॉन्शियस पे उस पे रशिया के साथ कोई कोई समझौता नहीं हो रहा यूक्रेन का, ये थोड़ा बड़ा सोचने वाली बात हम सबके लिए है। जी हाँ नितिन जी। Now, in terms of from the Navy point of view, first of all, congratulations, भारतीय नेवी का INS विक्रांत ऐड होने जा रहा है, which is a beautiful aircraft carrier and very big also, 44,000 tons ऐसा मैंने सुना है, देखा है मैंने। तो how will that be a game changer, like from the naval point of view, जैसे ब्लैक सी में किस तरह भारतीय नेवी ने कवर किया अमेरिकन, मतलब सॉरी रशियन नेवी ने ब्लॉकेट किया ब्लैक सी में। तो इज इंडियन नेवी टेकिंग लेसन्स फ्रॉम दीज काइंड ऑफ थिंग्स? ऑब्वियसली दे आर टेकिंग। लेकिन जो नया एयरक्राफ्ट कैरियर ऐड हो रहा है भारत का, हाउ विल दैट चेंज इन द सिक्योरिटी, मोर सिक्योरिटी ऑफ भारत? देखिए, रशियन नेवी जिस तरह ऑपरेट करती है उससे थोड़ा सिमिलर वे में इंडियन नेवी भी ऑपरेट करती है, और उससे एंटायरली डिफरेंट वे में यूएस नेवी ऑपरेट करती है। यूएस नेवी का सबसे बड़ा इश्यू ये है कि दे हैव से 18-19 एयरक्राफ्ट कैरियर्स और दे आर अ ब्लू वाटर नेवी, ऐसा कहा जाता है। दे देयर प्रेजेंस इज ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारे 7 सीज में उनकी प्रेजेंस है, और उनकी फ्लीट हमेशा, जैसे इसी जमाने में अंग्रेजों के उसमें कहा जाता था कि अंग्रेज राज्य में कभी सूर्य नहीं अस्त होता, तो वैसे ही यूएस नेवी जो है कंटिन्यूअसली यूनाइटेड स्टेट्स का जो एक एक पूरे विश्व को सोल सिक्योरिटी प्रोवाइडर का एक दर्जा लिया हुआ है, और कंटिन्यूअसली उनका पेट्रोलिंग जो है अक्रॉस द ओशंस रहता है। पर रशियन नेवी और इंडियन नेवी इस तरह नहीं है। हमारी नेवल शिप्स की प्रेजेंस ऑल्दो अक्रॉस द वर्ल्ड है, बट हम ज्यादा वरिड हैं अपने अपने बैकग्राउंड की, अपने अपने बैकयार्ड की सिक्योरिटी के लिए, और उसी को फोकस करके हमने अपनी नेवी बिल्ड करी हुई है। रशिया ने जिस तरह ब्लॉकेड अचीव किया, और ऑल्दो दे हैव लॉस्ट अ शिप और टू, बट ये पक्का है कि रशियन नेवी is one of the most professional naval services across the board। और इंडियन नेवी ने भी हमेशा हमने देखा है कि 1999 के वॉर में बहुत तगड़ा ब्लॉकेड पाकिस्तान के खिलाफ अचीव किया था, ऑपरेशन तलवार जिसको नाम दिया गया, और परिस्थिति ये आ गई थी कि पाकिस्तान had only 15 days of fuel reserve left in the year 1999. In the 1971 war also, we have done something which is known as gunboat diplomacy। Russian origin के missile boats थी which went near Karachi and they attacked।
So Indian Navy has been a very aggressive force when it comes to Western Seaboard, and even though even also in Eastern Seaboard, where the Bangladesh Mukti Yuddh was going on in during 1971 war, Indian Navy was the aggressive force, and we ensured that Bangladesh was freed within those 13 days. So we have quite a lot to learn from them. But the first thing first is we do not have any international ambitions as far as the US has. So we are quite happy securing our own backyards rather than going away or to far away places. One of the things which really strikes is the media reporting. Media, all the media always reports Indian armed forces to be very weak, especially in the West. And एक impression डाला जाता है US में that the Indian Navy needs a lot of aid from Americans and British and other people. That's a good thing because they should give all the weapons जब भी चाहिए उनको दे सकते हैं. But this is a general impression. But during the last 5 months or 6 months, and this is I'm saying pre 5-6 months before the Ukraine war, now there is a new respect for the Indian Navy and Indian armed forces. I don't know what has changed. Maybe they know the ground situation better, or India's posture with China is changing the perception. But the West has slowly come to the perception that the Indian armed forces are very, very strong. And they are the only armed forces which can take on China. And India is playing a very wise policy. India is very wise. India is saying that we don't want any intervention. We will take care of ourselves as we need. Very wisely, India has put it. Because the investment comes at a cost also. So what is your view that what has changed the perception in Western media now suddenly? Apart from the president himself, the rest of the US media particularly sees China as the biggest competitor of in terms of international stature of the USA. So till recently, China was quite far away, and it was not considered to be the next successor to the throne. But things have changed quite rapidly. China has rebelled like anything in international arena. They are making warships at a very high rate, and much faster than even the best of the nations did during World War II. So China is rapidly growing in stature, and the only nation that is able to stood up to Chinese hegemony is India. Be it their advances in Ladakh, be it their continuous deployment in India's backyard, that is Indian Ocean region, Indian Navy, Indian Army, we all are standing up to China. And although we would appreciate Western countries to join us in the fight against Chinese hegemony through Quad, or through G7, whatever the international forums are, but we are not dependent on the international forums or other countries to fight back our own adversary, that is our biggest adversary, that is China. एंड थ्रू अभी हमने सबने ये भी देखा है कि किस तरह श्रीलंका में इन्होंने पैलेसेस बनाए. चाइना का एक जो इकोनॉमिक मॉडल है ये बहुत ही ज्यादा मैं ये कहूँगा कि कॉलोनियल है, जैसे कि ब्रिटिशर्स ने किया था. धीरे धीरे उन्होंने कंट्रीज को कॉलोनाइज करते गए, अफ्रीका को कॉलोनाइज किया, एशिया को कॉलोनाइज किया. तो उसी पैटर्न से चाइना भी क्या कर रहा है. अभी जो प्रेसिडेंशियल पैलेस हमने कल देखे, वीडियोस आए, 2 दिन से वीडियोस आ रहे हैं जिसमें कि प्रेसिडेंशियल पैलेस जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट का है उसमें लोग घुसे हुए हैं और उनके स्विमिंग पूल में कोई नहा रहा है, कोई उनके बेड पे सो रहा है, कोई उनके बाथरूम में वॉशरूम में नहा रहा है. वो जो पैलेस है उसको बनाया था श्रीलंका ने. इसी तरह से श्रीलंका ने पैलेसेस और अलग अलग अफ्रीकन कंट्रीज में भी उन्होंने प्रेसिडेंट्स के लिए पैलेसेस बना के दिए हैं, उन्होंने संसद भवन बना के दिए हैं लोगों को. तो ये सब कंट्रीज में ये इस तरह का डेट ट्रैप उनका एक पॉलिसी से चले हुए हैं, और वहाँ का जो नेचुरल रिसोर्सेज है या उनके पोर्ट्स हैं, उनकी मिलिट्री है, उनको धीरे धीरे करके वो
अपने में उनके पोर्ट्स को वो 100 साल की 200 साल की लीज पे लिखवा लेते हैं और उसके बाद ही डेट देते हैं। तो ये चाइनीज डेट जो है उसकी वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड चाइना हैज बिकम द मोस्ट अनपॉपुलर नेशन। और खास करके वो कंट्रीज जहाँ पे करप्शन ज्यादा है, वहाँ चाइना इज इमर्जिंग एज द बिगेस्ट लेंडर टू दोज कंट्रीज। और वहाँ पे हर जगह पे एक के बाद एक इकोनॉमिक कोलैप्सिस हो रहे हैं, और उन कोलैप्सिस के लिए सभी एंटायर वर्ल्ड अभी दे हैव वोकन अप सडनली टू दी चाइनीज हेजेमोनी। और उसको फाइट करने वाला एक ही कंट्री है, चाइनीज डेट ट्रैप हो, चाइनीज मिलिट्री माइट हो, उसको स्टैंड करने वाला उसके बगल में बैठ के उसका एक फ्रेंड, उसका एक नेबर होके इंडिया स्टैंड कर रहा है। तो दिस इज दी स्टैंड ऑफ इंडिया इंटरनेशनली हैज हेल्प और हैज रेज्ड दी स्टैंडर्ड। और इंडिया का जो सडन एक एक जो इज्जत बढ़ी है वर्ल्ड ओवर, उसका रीजन यही है कि वी आर स्टैंडिंग अप टू चाइना। You know, one of the things which really often gets touted is the and Hollywood movies have a big role to play. Hollywood movies show कि हमेशा एक अमेरिकन हीरो पूरी दुनिया को बचाता है, but in reality all the American heroes are rescued actually. जैसे अफगानिस्तान में रेस्क्यू हुआ, and Vietnam was rescued, and even to some extent other parts, Somalia also a rescue happened. And the biggest rescue mission which the Americans failed was Afghanistan actually in recent years. So has that changed कि Hollywood में hero but on the ground zero? इसका कुछ the Indian Army takes a note of that, or Indian Armed Forces, and how do they view it? No, actually, मैंने जहाँ तक सुना है, Pentagon has a a separate department, media department, that coordinates with Hollywood to make such propaganda movies. They are very good at propaganda. We have seen it in the previous months of Russia-Ukraine conflict also. There was a lot of US propaganda. There was a lot of West propaganda, I would say, that Russia is losing in a big way. Russia is saying desertions in their soldiers are running away from the fight. When the losses of Russia were humongous, they were losing soldiers in a big way. They were losing tanks. They are losing aircrafts. Then there was a like we have the Top Gun Maverick, जिसमें कि टॉम क्रूज जाता है और पूरे वर्ल्ड में पता नहीं 2-3 बार, अब तक 2 बार तो वर्ल्ड को बचा चुका है। उसी तरह उन्होंने दे हैड घोस्ट ऑफ कीव फोर्ज स्टोरी विच वाज प्लांटेड कि बहुत सारे एक ही MiG-27 यूक्रेन का एक फाइटर पायलट ने अपना MiG-27 उड़ा के बहुत सारे रशियन एयरक्राफ्ट को गिरा दिया, तो बहुत सारे सुखोइज को गिरा दिया। और ये सब इस टाइप की स्टोरीज बहुत सारी प्लांट वो लोग करते रहते हैं। बट जिस तरह कॉन्फ्लिक्ट इतनी लंबी चली, तो there is an end to every conspiracy theory. There is an expiry date. I must say there is an expiry date to each and every conspiracy theory or each and every propaganda. You cannot sustain a fake propaganda forever and ever and ever. This is what the US does through the Hollywood movies. We don't do that in India. Our military has, let me share my own experience. We are very secretive in a way. We don't easily give permissions to movie houses to make movies on things which have really happened. These NOCs and these permissions come a very hard way, and we do not have a liaison department like the Pentagon has that facilitates such propaganda in the Indian Army. We don't have such department. आपने तो पूरा अक्षय कुमार की फौजी मूवीज पे पानी फेर दिया 2 मिनट में कि most of see the way they show the emotions they show, and it looks like a very South Korean kind of thing. South Koreans also show very emotional military leaders, and they're crying and their wives are leaving. Practically तो ऐसा होता नहीं होगा. Practically तो like they're happy. देखिए यार, प्रोफेशनल फोर्स, देखिए ये सब, देखिए रोना धोना तो होता है, ऐसा नहीं है. देयर आर फैमिलीज, बट ड्यूटी पे जाने वाला हर बंदा वापस नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता है. सो इतना रोना धोना नहीं होता है जितना दिखाया जाता है. और थोड़ा ज्यादा ओवर पेट्रियोटिज्म या अच्छे वॉर मूवीज ना बहुत कम बने. जैसे हकीकत हो गया,
जो 62 वॉर पे बना था, या विजेता हो गया जो एयरफोर्स के ऊपर बना था। बॉर्डर हैड ऑल द इमोशंस, बट इतना इमोशनल होता नहीं है कि वो बंदा जैसे सुहागरात में तो चलू वाला गाना गा के जा रहा है, ऐसा इतना टाइम किसी को नहीं मिलता है। ये ऐसे चुटकी बजती है और आदमी ड्यूटी पे हाजिर होना होता है। सो इमोशंस आर ऑलवेज देयर, और इंडियन साइड जो है वो इमोशंस पे टिका हुआ है। बट होपफुली टाइम्स विल चेंज। अभी काफी सारा वेब सीरीज वगैरह का भी चला हुआ है, तो टाइम्स विल चेंज और थोड़ा और ज्यादा प्रोफेशनल वे में मूवीज दिखाए जाएंगे इंडिया नहीं, में। अमेरिकन मीडिया ऐसा दिखाता है, एंड people can read the, I think I'm getting the text that yes, its translation is good. So American media shows कि CIA किस तरह interpret करता है, and they show completely magical world, or that is the first line of American defense also. And with due respects to all of them, and also it is shown, but the Indian जो officer है वो हमेशा एक बड़ा गरीब सा, lack of resources. I don't think so. It is must be how is the real scene behind the everything. रिसोर्सेज की जब बात करें तो सीआईए ये कभी नहीं दिखाता है कि वो सारे रिसोर्सेज उन्होंने पाकिस्तान को आर्म करने में यूज कर लिए, पाकिस्तान या फिर पुअर कंट्रीज के पॉलिटिशियंस को परचेज करने में, पाकिस्तान और ऐसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो थे उनके पॉलिटिशियंस को परचेज करने में या उनको ब्राइब करने में खर्च कर दिए। वो रिसोर्सेज जिनके थ्रू अभी भी वो लोग देर इज दिस यूएस अमेरिकन डीप स्टेट जो कि पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करता है, उस वही डीप स्टेट जो कि अफगानिस्तान वालों को कभी मुजाहिदीन कहता था, अभी वो तालिबान कहता है। तो इंडिया में देर इज नो लेक ऑफ रिसोर्सेज, बट यस वी डू केयर फॉर मनी, और हम हमारा जो स्पेंडिंग है ना वो आउटलैंडिश नहीं है। ऐसा ही इसी आउटलैंडिश स्पेंडिंग की वजह से ही जो अफगानिस्तान में हुआ, पहले आपने उनको मुजाहिदीन कहा, फिर आपने उनको तालिबान कहा, और कभी तालिबान कभी मुजाहिदीन, दे केप्ट गेटिंग द फंड्स from the US only. They kept getting the Stinger missiles. They kept getting the arms from the US only. So इस तरह का आउटलैंडिश स्पेंडिंग या पूरे वर्ल्ड ओवर में अपनी हेजेमोनी जमाने के लिए यूएस ने बहुत कुछ किया। और हर बार मैं ये कहूंगा कि ऑन ए लॉन्ग टर्म जो लड़के मरे हैं या जिन लड़कों ने अपनी जान यूएस के लिए लड़ने में अफगानिस्तान में गवाई थी, उनके पेरेंट्स आज भी, मुझे ये पता है कि यूएस में उनकी गवर्नमेंट को पूछते हैं कि आपने उन फार अवे लैंड्स में हमारे बच्चों को क्यों भेजा भाई। क्या एक पुअर बच्चा इसलिए दुनिया में पैदा होता है कि यूएस गवर्नमेंट अपनी हेजेमोनी बढ़ाने के लिए उसको कभी अफगानिस्तान कभी वियतनाम इन जगहों पे लड़ने के लिए भेज दे? ये तो ठीक नहीं है। और जो उन्होंने किया है, और उसके बाद भी उन्होंने, अगर ये पॉलिसी सही होती तो अफगानिस्तान में जो हुआ वो नहीं होता, अभी जो सीरिया में हो रहा है वो नहीं होता, ISIL कभी नहीं हुई। जिस तरह आपने इराक में आपने 2-2 बार सेना भेज दी, तो और इराक में क्या कहा, वहां पे भी मुंह की खाई, और उनकी वजह से ही आज इस्लामिक स्टेट बना हुआ है इतना खतरनाक। और इराक, सीरिया, उस लेवेंट, वो पूरा जो रीजन है उसका जो बैलेंस था समवट, जो कि वहां का जो जो भी था बंदा, बट उसकी वजह से वो टिका हुआ था, चाहे अच्छा था चाहे बुरा था, सद्दाम हुसैन। और आपने उसके जाने के बाद भी आप प्रूव नहीं कर पाए कि देयर वाज नॉट अ सिंगल वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन WMD दैट वाज फाउंड। सो इंडिया जो है, हमारी कोई ऐसी बड़ी ग्लोबल एम्बिशन नहीं है। हम वी डोंट सेंड अवर ट्रूप्स ऑन फॉरेन लैंड्स। हमें बोला गया था, यूएस के द्वारा प्रेशर भी था कि आप अफगानिस्तान में अपने बंदे भेज दीजिए, हमने कभी नहीं भेजे। हम अपनी रीजनल एम्बिशन है हमारी, हम अपने रीजन और अपने कंट्री को सेव करके चल रहे हैं, एंड उसी में हम खुश हैं। सो हमारा जो स्पेंडिंग है वो काफी ठीक ठाक ही है। यस, वी हैव बीन दी बिगेस्ट, हमारा इंडिया के ऊपर एक सबसे बड़ी काली ये भी लगी हुई है काली, कि वी हैव बीन दी लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम नंबर 1 पे थे। अभी धीरे धीरे परिस्थिति चेंज हो रही है। अभी हमारा जो इंडिया में जो एक्सपोर्ट है वो भी राइज कर रहा है। 17,000 करोड़ रुपीस का एक्सपोर्ट इंडिया ने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में अचीव किया है आर्म्स एंड एम्युनिशन का। तो धीरे धीरे जिस तरह हम अपनी इंडिजिनस को बढ़ा रहे हैं, इंडिया में जिस तरह वेपन्स बन रहे हैं, प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं, शिप्स बन रहे हैं, LCA तेजस है, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली हम ये वाला जो टैग है विच इज नॉट गुड फॉर अ कंट्री विच हैज लिमिटेड रिसोर्सेज। मैं ये कहूंगा कि इंडिया के पास जितना यूएस के पास रिसोर्सेज है उतने सारे नहीं है। उस रिसोर्सेज के साथ वी शुड नॉट बी स्पेंडिंग दैट मच।
सो हम अपना जो इम्पोर्ट के स्पेंड कर रहे हैं मिलिट्री इम्पोर्ट्स पे, वो भी धीरे धीरे कम हो जाए। नहीं, यूएस का इकोनॉमी अभी सबको समझ में आ गया है कि मिलिट्री के बेसिस पे डॉलर की वैल्यू बना के रखी हुई है। लोग डर के मारे, अमेरिकन सैंक्शंस से डर के मारे डॉलर में ट्रेड कर रहे हैं। ये दिस फैक्ट इज आउट नाउ इन द ओपन। तो अभी यहाँ पे भी स्पेंडिंग कम होने वाली है, बिकॉज इट्स नेचुरल कि अभी कितना प्रिंट करेंगे। दुनिया को पता लग गया है कि ये लोग हमारे खर्चे पे प्रिंट कर रहे हैं। बिकॉज व्हाट दे डू इज, व्हेन द कंट्रीज बाय एडीआरस, दे स्टार्ट प्रिंटिंग their डॉलर्स उसके बेसिस पे। सो debt to economy ratio is very high. American is almost 720%. 720% इतना ज्यादा है। So it is unsustainable overall. And in इसीलिए अमेरिका में इन्फ्लेशन अभी ज्यादा है, क्योंकि रशिया has shown American sanctions have worked against Russia, against Americans now. तो ये तो कम होगा धीरे धीरे। बट एट द सेम टाइम अभी एक जो नया इशू लोगों ने क्रिएट करा था इसके ऊपर, अग्निवीर के ऊपर, अग्निपथ अग्निवीर। तो एक अगली अग्निपथ मूवी बनी थी, उसके बारे में बात नहीं हो रही है। यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट है, इट हैज ब्रोकन ऑल द रिकॉर्ड्स। और मैंने तो काफी वेलकम किया इस डिसीजन को। लेकिन आपका इसमें क्या व्यू है, बिकॉज यू आर ए नेवी वेटरन एंड यू नो व्हाट इज द सिचुएशन। देखिए, टूर ऑफ ड्यूटी का जो कंसेप्ट है वर्ल्ड ओवर, उसी कंसेप्ट को इंडिया में इट हैज बीन गिवन एन इंडियन नेम, जिसे कहा जाता है अग्निपथ। और द इंडिविजुअल हु विल जॉइन the armed forces as soldier, sailor, and airman, he will be known as Agniveer, Agniveer Vayu, Agniveer Nausena, and Agniveer Army. They will be below the lowest rank of a soldier, जो कि नेवी में C2 है, सीमैन क्लास 2, एयरफोर्स में एयरमैन है, और आर्मी में सिपॉय है। उससे भी लोएस्ट रैंक में इस बंदे को लिया जाएगा। अगर मैं नेवी स्पेसिफिक बात करूं तो इट हैज बीन दी मोस्ट, मैं कहूंगा कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने बहुत सारे रिक्रूटमेंट पैटर्न्स में चेंज किए हैं। ये वाला जो चेंज है, ये क्योंकि नेवी बहुत जल्दी एक्सपांड हो रहा है, हम नए सबमरीन्स और शिप्स खुद बना रहे हैं। आप सोचिए, ऑलरेडी विक्रांत आ रहा है, विक्रांत के बाद विराट आने वाला है, विक्रमादित्य ऑलरेडी सर्विस में है। ये बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। मार्मुगाओ मेरे ख्याल से 15 अगस्त तक वो भी विक्रांत के साथ साथ कमीशन हो जाएगा, जो कि एक स्टिल्थ मिसाइल फ्रिगेट है। उस समय पहले ही हमने आईएनएस विशाखापट्टनम को कमीशन किया है। तो ये सभी शिप्स में आप यू नीड क्वाइट अ लॉट ऑफ मैन पावर। आप नए नए शिप्स कमीशन कर रहे हैं। नेवी एक कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट जो है गल्फ ऑफ ओमान में और वहां पे अपना कंटिन्यूअस सस्टेन कर रहा है। तो एंटी पायरेसी पेट्रोल्स कंटिन्यूअस हो रहे हैं, वर्ल्ड ओवर विजिट्स कंटिन्यूअस हो रहे हैं। तो नेवी हैज एक्सपांडेड इन अ बिग वे, not ideally the blue water navy that the US thinks they are, but we are almost a blue water navy, sustained in itself. So सबसे बड़ा दूसरा इशू ये भी है कि we have a big enemy, a large enemy with a large force or with a very modern technological weapons. दूसरी तरफ हमारे पास पाकिस्तान एक और एनिमी है। तो हमें इमीडिएटली जो मैन पावर हमारी रिक्वायरमेंट है उसे मीटअप करना तो है ही है। साथ साथ में नेवी, अर्लियर जो नेवी होती थी, आपको जैसे यूएस में होमलैंड सिक्योरिटी जिसे कहा जाता है, इंटरनल सिक्योरिटी वाज नॉट अ बिग कंसर्न इन आवर टाइम्स। व्हेन आई जॉइंड द नेवी इन 1997, देयर वर नो सिक्योरिटी गार्ड्स व्हिच वर रिक्वायर्ड टू बी डिप्लॉयड फ्रॉम विद इन द शिप। नेवी के किसी बंदे ने कभी, इट इज अ वेरी प्रोफेशनल एंड टेक्निकल फोर्स, सो बंदे ने किसी ने गन पकड़ के सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी भी नहीं करी थी। तो बट अभी ये हो गया है कि आपका say 10 to 20% of manpower is continuously deployed as a security person, securing your ship, securing the naval establishments 24/7. So apart from the normal duties, आपके पास काफी सारी मैनुअल जॉब्स भी आ जाते हैं, लाइक सिक्योरिटी एंड ऑल, जिसके लिए आपको यू नीड मैन पावर। दूसरा, यू नीड जूनियर मैन पावर। दूसरा कि शिप्स में फॉर्चुनेटली मैं बताना चाहूंगा कि अभी मेरी एक बहुत हाई प्रोफाइल नेवल ऑफिसर से बात हुई हमारे अभी रिसेंटली लास्ट वीक में। उन्होंने यही बताया कि अभी नेवी की जो परिस्थिति है, जब कि उनके पास जूनियर हैंड्स नहीं है, क्योंकि नेवी एडवांस हुई है, मॉडर्नाइज हुई है, प्रमोशन एस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हो गए हैं, जो कोई सेलर्स उसमें हैं उनके। तो 8 साल में जो बंदा एज ए C2 ज्वाइन करता है, ही बिकम्स अ पेटी ऑफिसर बाई 8 years, विद इन 8 years। अब
आप पेटी ऑफिसर के पास मेनियल जॉब नहीं करा सकते, ही इज अ सीनियर रेटिंग इन द नेवी। अब इस परिस्थिति में यू नीड जूनियर हैंड्स टू वर्क in the lower decks to perform the tasks of maintenance, to do so many jobs which a junior hand has to do. A senior person cannot be forced to do jobs or duties which are needed to be done by junior hands. और बहुत सारे आप इन परिस्थितियों में when will the अग्निवीर has come as a blessing in disguise for us. ये ऐसा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है जो कि इट्स आउट एंड आउट ब्लेसिंग फॉर अस, बिकॉज हमारे पास जो अग्निवीर ज्वाइन करेगा वो लोवेस्ट रैंक में रहेगा और 4 साल तक ही विल बी ग्रूम्ड एज अ सेलर इन द नेवी। और उसके बाद में अग्निवीर सेलर जो है वो 4 साल बाद ही विल बिकम अ C2 आफ्टर, जो कि उसमें से जो 25 अराउंड 20-25% जिनको एब्सॉर्ब किया जाएगा सर्विस में, ही विल बी दी C2। और C2 के बाद आफ्टर 5 years लीडिंग का टाइम स्केल प्रमोशन होता है माइनस सीनियोरिटी, मतलब कि अगर उसको 1 साल का सीनियोरिटी मिला है तो 4+4 वो 8 साल बाद वो बंदा लीडिंग सीमेन बनेगा। मतलब आपके पास ऑलमोस्ट 8 साल के लिए, ऑलमोस्ट फॉर 8 years यू हैव अ जूनियर रेटिंग, जूनियर सेलर वर्किंग ऑन बोर्ड योर शिप एज अ मैन। सो वो मैन पावर का जो सबसे बड़ा क्रंच अभी नेवी में चल रहा है जूनियर मैन पावर का, उसको मीट करने के लिए अग्निवीर इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग सिंस लास्ट से 10 years। क्योंकि मैं जब शिप में था, जब मैंने 98 में मैंने जब ऑनबोर्ड उदयगिरी जब रिपोर्ट किया, तो देयर वर सो मेनी जूनियर्स लाइक मी जो कि शिप में होते थे। एंड जब मैंने 2010 में जब शिप छोड़ा, दैट वाज दुनागिरी, तो परिस्थिति ये थी कि 2 जूनियर होते थे और उन 2 जूनियरों में से उसको किस डिपार्टमेंट में ले जाया जाए उसके लिए लड़ाई होती थी। 3-4 डिपार्टमेंट थे हमारे उनके बीच में कि ये जूनियर मुझे दे दो। सो उन चीजों को टर्न अराउंड करने के लिए नेवी हैज पर्टिकुलरली गिवन ऑल इट्स वोट्स टू दिस स्कीम, अग्निवीर स्कीम, which will be beneficial to the individual as well as the services। सर्विसेज को सबसे बड़ा बेनिफिट इससे यही है कि हमारी जो मैन पावर क्रंच जो है इमीडिएट वाला वो मीटअप हो जाएगा। और दूसरा 8 साल बाद जो एक्सपीरियंस बंदा है, he will get a lot of chances in these services also 4 साल बाद। So it's a great thing for us. This is what I believe. One thing is very clear कि जो कंट्रोवर्सी जो क्रिएट किया गया था अग्निवीर के अगेंस्ट, वो उसके पीछे इज नॉट, इसे मोस्टली पॉलिटिकल होता है, बिकॉज देयर वाज नो फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड। जो बिकॉज इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, आपने बताया कि दे आर वेरी प्रोफेशनल एंड दे आर जस्ट फॉलोइंग ए ग्लोबल मॉडल। बिकॉज यू आर एब्सोल्युटली राइट, बहुत सारे अमेरिकन सर्विसमैन जिसको वेटरन बुलाया जाता है, दे आर लाइक अग्निवीर प्रोग्राम पीपल। They are not warriors on the front. They are just doing the other jobs like loading the planes, और ये सब काम करते हैं। उनको भी सोल्जर ही बोला जाता है because they are helping the soldiers and they are in the armed uniforms। American forces में भी ऐसा होता है, very common program, and India has just taken the best practice from other forces and done it in India, you know, there is nothing new। Controversy, very true, very true। Aditya जी, मैं सबसे पहले तो एक्चुअली कंट्रोवर्सी इज अ सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन। मैं सबसे पहला तो मैं ये कहूंगा कि दिस इज द टॉप मैनेजमेंट भी ये फील करता है, जो मैंने इससे पहले बताया कि हमारे लिए ये नीड ऑफ द आवर है। मैं बाकी दोनों सर्विसेज के ऊपर अभी जाता ही नहीं हूँ, केवल नौसेना की बात करूँ। इफ आई टॉक ओनली अबाउट नेवी, इज द नीड ऑफ आवर। अग्निवीर विल सॉल्व द मैन पावर इश्यू लाइक एनीथिंग। दूसरा हमारा एट्रिशन का एक इश्यू है कि 15 साल बाद बंदा आगे सर्विस नहीं करता, जैसे कि मैंने भी 15 साल बाद छोड़ दिया। जबकि नेवी ये चाहती है कि मिनिमम जो है आदमी 20 साल तो सर्विस करे। तो 4 साल अग्निवीर और 15 साल की मिनिमम सर्विस क्राइटेरिया का हिसाब से अ पर्सन हु विल बी रिटेन्ड आफ्टर हिज टेन्योर ऑफ 4 years इन अग्निवीर, he will एक्चुअली वो जो 25 या 20% होंगे, दे विल सर्व टिल 20 years, सो ऑलमोस्ट 19 years मिनिमम। उसके बाद वो एक्सटेंड करेंगे, वो उनके ऊपर और उनके परफॉर्मेंस और कमांडिंग ऑफिसर के ऊपर डिपेंड है। सो दिस इज सॉल्विंग अवर मैन पावर इश्यू लाइक एनीथिंग। की बात ही नहीं है। अब बात करूं केवल और केवल कंस्पिरेसी जो थियरीज हुई या जिस तरह आगजनी इन्होंने करी, जिस तरह इन्होंने ट्रेनें जलाई, तो उसके लिए 5 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे। उसमें से लेट मी रिमेंबर एंड लिस्ट देम आउट। सबसे पहला सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि
इसको पब्लिकली अनाउंस किया गया। देखिए नेवी ने बहुत टाइम से, बहुत समय पे अपनी रिक्रूटमेंट पैटर्न्स चेंज करी है। मुझे याद है ब्रिटिश टाइम से बॉयज एंट्री का स्कीम पैटर्न हुआ करता था, जिसमें कि 15 साल के बॉयज को नेवी में लिया जाता था, बिकॉज रिगिंग वॉज अ टफ जॉब। तो ये माना जाता था कि नेवल सर्विस, बिटवीन दी थ्री सर्विसेज, नेवल सर्विस वॉज द फ्लैगशिप ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, बिकॉज ब्रिटिश नेवी ने ही पूरे वर्ल्ड पे ब्रिटिश फ्लैग को जो है पहुंचाया और उनके रूल को एक्सटेंड किया। तो नेवी वॉज दी टफेस्ट जॉब, क्योंकि रिगिंग, क्योंकि रस्सी खींच के आपको उस समय इंजन वाले जहाज नहीं होते थे इनिशियल फेज में, जब ब्रिटिश इंडिया में आए या ओवरऑल वर्ल्ड जब पहुंचे हमारी आजादी के 200 साल पहले, आज से 200 275 ईयर्स पहले। तो ये बात होती थी कि सेलर्स को जो टफेस्ट होना चाहिए। तो और दूसरा न्यूट्रिशन का इश्यू फैमिली के खाने में रहता था। तो ब्रिटिशर्स ये मानते थे कि उनको बॉयज, एज ए बॉयज, इन पर्टिकुलरली इंडियन बॉयज का ये इश्यू था कि न्यूट्रिशन वाज नॉट अप टू द मार्क, ऐसा ब्रिटिशर्स को लगता था। तो बॉयज लिए जाते थे 15 साल के, रॉयल इंडियन नेवी में, RIN की बात कर रहा हूँ। 15 साल के बच्चों को 17-18 साल तक उनको ऑनबोर्ड रखा जाता था एज ए, उनको ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट में, ट्रेनिंग शिप्स में, इनमें ट्रेनिंग दी जाती थी। साथ साथ में उनको एक्सरसाइजेस और अच्छा राशन ये खिलाया जाता था, जिससे कि बाय द टाइम दे बिकम परमानेंट फिक्सचर इन द नेवी, उनको जब तक रेटिंग, जो जूनियर मोस्ट रेटिंग का जब तक उनको पद मिले, तब तक वो जो बॉयज हैं उनको बॉयज ही कहा जाता था, और वो फिजिकली फिट हो जाएं और मेंटली वो रेडी हो जाएं कि शिप की रिगिंग और ये सब जो ड्यूटीज है, जैसे पुलिंग से जो शिप चलती थी, ओर्समैन लिए जाते थे। तो बहुत ज्यादा फिजिकल फिटनेस, और खास करके जब सी रफ हो, जब बंदा उल्टी मार रहा हो, ऐसे समय में भी यू हैव टू कीप गोइंग। आपको उस टफ सर्विस में, आर्मी और एयरफोर्स से कहीं ज्यादा टफ नेवल सर्विस को माना गया है, और डेजर्शन रेशियो, लोगों का भाग जाने का रेशियो भी बहुत ज्यादा था। तो नौसेना को बच्चों को लिया जाता था। ये पैटर्न जो है इंडियन नेवी ने 68 में 1968 में आते आते चेंज किया। उससे उस बीच में डायरेक्ट एंट्री पैरेलली शुरू थी, ऐसा नहीं है, डायरेक्ट एंट्री रिक्रूट्स भी नहीं होते थे, जो कि 17 या 18 साल के बच्चों को, यंग लड़कों को, मैन को लिया जाता था। उसके बाद में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम नेवी ने कहा कि अब हम बॉयज एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि शिप ज्यादा टेक्नोलॉजी वाले हो गए हैं, इंजिन जो है तब तक स्टीम इंजिन आ चुके थे, डीजल इंजिन भी आने लगे थे। तो इट वॉज टर्न की अभी जो हम रिक्रूटमेंट करेंगे, डायरेक्ट एंट्री करेंगे, हमें बॉयज लेने की जरूरत नहीं है। फिजिकल फिटनेस वॉज ऑलवेज द फर्स्ट पार्ट, बट जितना ज्यादा फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दिया जाता था, उसकी जगह मेंटल एजिलिटी और जो डायरेक्ट एंट्री रिक्रूट हम ले रहे हैं, उन्हें साइंस पढ़ी होनी चाहिए, उनका इंटेलेक्ट थोड़ा बाकी सर्विसेज से हाई चाहिए। वो रिक्वायरमेंट होने लगी, क्योंकि नेवी एक टेक्नोलॉजिकल फोर्स तब तक बन गई थी, बनने लगी थी। आगे बढ़ के नेवी ने डायरेक्ट एंट्री डिप्लोमा होल्डर्स लिए, आर्टिफिशियल अप्रेंटिसेस लिए। डायरेक्ट एंट्री डिप्लोमा होल्डर्स को 10 साल के लिए रखा गया। 9 ईयर्स रिजर्विस्ट वॉर टाइम में रिक्रूटमेंट की गई, जिन्हें 9 साल के बाद रिजर्विस्ट में भेज दिया गया 5 साल तक। तो नेवी हैज चेंज रिक्रूटमेंट पैटर्न्स लाइक एनीथिंग। पहले मैट्रिक एंट्री रिक्रूटमेंट होती थी डायरेक्ट एंट्री में, उसको सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट यानी कि 12th 10+2 रिक्रूटमेंट करी गई। तो इवन आफ्टर सो मेनी चेंजेस, रिक्रूटमेंट पैटर्न, इतनी सारी चेंजेस हुए, फिर भी दैट नेवर वाज इतना कभी हल्ला गुल्ला, कभी कोई डिस्कशन हुआ ही नहीं, बिकॉज नेवी हैज ऑलवेज बीन मॉडर्नाइजिंग एंड चेंजिंग इट्स पैटर्न्स ऑफ रिक्रूटमेंट। बट ये इस बार तो जो मैं बताना चाहूंगा कि ये प्योरली पॉलिटिकल, प्योरली लोगों का इरादा ही ये था कि इसको जलाया जाए। ऐसे लोग जो कि ओपोजिशन के पॉलिटिशियंस है, जिन्हें मौका चाहिए था कि कैसे भी लगे बच्चों की एस्पिरेशंस के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ऐसा दावा करो, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आपको पेंशन नहीं मिलेगा, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। इट इज अ टूर ऑफ ड्यूटी फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल अदर देन दोज हु विल बी टेकन इन सर्विस एज परमानेंट फिक्सचर्स। सो टूर ऑफ ड्यूटी में कहीं नौकरी मिलने का या पेंशन नहीं मिलने का वो कंसेप्ट अलग अलग चीजों को हाईलाइट करके लोगों में डिससेटिस्फेक्शन को फैलाया गया। उसके बाद में जो लोग कोचिंग क्लासेस चला रहे थे, अनफॉर्चुनेटली उन लोगों ने इस स्कीम को समझा नहीं, और उन्होंने बच्चों को उकसाने का काम किया और ट्रेनें जलवाने का काम किया। ये साउथ में भी हुआ, नॉर्थ में भी हुआ, दोनों जगह से कोचिंग क्लासेस वाले बंदे पकड़े गए हैं। अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोग थे जिन्होंने सोशल मीडिया पे इंडिया की बदनामी हो, जिनका काम ही हमेशा ये रहा है कि who have acted as the tip of spear for the enemies,
बीइंग इंडियन, ऐसे मैं नाम जो बताना चाहूंगा कि एक मोहम्मद ये अर्थ न्यूज का एक फाउंडर है मोहम्मद जुबैर, जो कि जू बियर नाम से अपना ट्विटर आईडी चलाता है। उसने सबसे पहला ऐसा ट्वीट किया अग्निवीर के कि इट इज इंडियन गवर्नमेंट इज प्लेइंग विद द एस्पिरेशंस ऑफ इंडियन यूथ। दूसरा एक कोई लेडी है, नेमली, इन लोग, ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कि सोशल मीडिया पे भी स्टॉर्म जगाया और लोगों को उकसाने का और बरगलाने का काम किया। दूसरी तरफ से ओपोजिशन के पॉलिटिशियंस लगे हुए थे जो कि दे वर आल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस गेम। हजारों की संख्या में एंटी इंडिया ट्वीट्स कराए गए और उनसे उनके उनके साथ कोलैबोरेशन में उनको कोलैबोरेट करने के लिए एनिमी एजेंट्स पाकिस्तान में बैठे बैठे ट्विटर पे स्टॉर्म जगा रहे थे, सोशल मीडिया पे आग लगा रहे थे। तो ये सब ने मिलके, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन्होंने मिलके ये आग लगाई। इनमें से किसी भी एक फैक्टर का आर्म फोर्सेस के साथ लेना देना नहीं था। इनमें से किसी भी एक फैक्टर का कहीं डायरेक्ट एसोसिएशन विद द आर्म फोर्सेस नहीं था। ट्रेन जलाने वालों में भी कई मोस्ट ऑफ दी लड़के ऐसे थे जिनकी की एज क्राइटेरिया जो है, एज जो है डिफेंस सर्विस के लिए निकल चुकी थी। तो इट इज अ वेरी सैडनिंग थिंग कि ऐसे पॉलिटिक्स अपने पॉलिटिकल एजेंडाज में जो कि इग्नाइट हुआ, इनिशिएट हुआ पॉलिटिक्स की वजह से, और उसके बाद में इंटरनेशनल आ गए, एनिमी ऑफ द स्टेट आ गए, ट्रेनें जलाई गई, ये सब जो पूरा जो 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 जघन्यता से जो जो चीजें हुई है, इसमें कहीं ना कहीं अगर मैं ये कहता हूं कि पक्का अगर किसी रिक्रूटमेंट स्कीम में कोई चेंजेस की जरूरत है तो वो समय के हिसाब से गवर्नमेंट भी करती है और आर्म फोर्सेस भी करती आई है, और कोई भी एस्टेब्लिशमेंट करेगा। बट जिस तरह से विरोध करने का जो काम हुआ है, विरोध के लिए हमेशा दुनिया में, इंडिया में, एक डेमोक्रेसी में जगह तो होनी ही चाहिए। देयर शुड बी ऑलवेज स्पेस फॉर डिसेंट। बट डिसेंट किसमें? इट इज अ पॉलिसी डिसीजन विच इज बीन टेकन। इट इज फॉर द आर्म फोर्सेस टू डिसाइड कि उन्हें क्या चाहिए। आर्म फोर्सेस आर सेइंग कि हमें अग्निपथ चाहिए, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं तीनों, उनके अगेंस्ट में ये आगजनी करना और वो डिसीजन को इस तरह उसको, उसकी बदनामी जो हुई है, इट इज अ वेरी सैडनिंग थिंग फॉर आवर कंट्री। और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि एनिमी ऑफ द स्टेट जो बैठे हैं, ये अंदर भी बैठे हुए लोग, हमारे दुश्मन, वो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि हर छोटे से छोटे मामले में इंडिया में आगजनी हो, इंडिया में राइट्स हो, इंडिया में इंडिया की वर्ल्ड ओवर बदनामी हो। ये कहीं ना कहीं चाहते हैं। इंडिया को डिस्टेबलाइज करने वाले ये जो लोग हैं, इनके खिलाफ मेरे तो ये मानना है कि इंडिया को कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। वी हैव टू थिंक समथिंग ऑन द लाइंस कि हम ये सोशल मीडिया पे बैठ के और मीडिया में बैठ के इंडिया को डिस्टेबलाइज करने वाले लोगों के खिलाफ कुछ ना कुछ बड़ा तगड़ा एक्शन लें। जी आदित्य। So one last question comes in the mind is the artillery is called the god of war, or it is the force which creates the victory on the ground. And if you look at the world forces, unless you have an expeditionary force, people don't respect you. It is a global thing. Expeditionary force is a must. कि people know कि 1 लाख soldiers को Indian Navy उठा के यहाँ से उधर 2 मिनट में रख देगी. Like it is, 2 minutes is just a way of saying very quickly. So is there any planning in Indian Navy for that? Because that's why the US naval projection is considered very serious, including Russian, because they can project a very fighting force with full equipment in any part of the world whenever they want it. So is there any plan for the Indian naval forces and Indian armed forces to have that expeditionary force via sea, not via land? So at sea we are an expeditionary force, but we don't go abroad. हम within no time we have the capacity to shift our artillery, our tanks, thousands of our men across the sea, across the land. अगर जरूरत पड़ी तो, अगर हमें पाकिस्तान में जाके बोर्डिंग करना पड़ा, अगर हमें लैंडिंग करना पड़ा, अगर हमें ऑन बोर्ड शिप, उनके शिप्स को बोर्ड करना पड़ा, चाहे वो चाइना के शिप्स को बोर्ड करना पड़े जो कि हमारे बैकयार्ड में हो, हम इसकी प्रैक्टिस बहुत सालों से कर रहे हैं। और खास करके ये बताना चाहूंगा कि हमारा जो ट्राई सर्विसेज कमांड है, द फर्स्ट ट्राई सर्विसेज कमांड, अंडमान एंड निकोबार कमांड, वो इसी बेस पे बेस्ड है, इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है कि आप जल, थल और नभ, इन तीनों में
इमीडिएट ऑपरेशंस कर सको, और उसमें जो मेन हमारे जो लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटीज है, एलसीएज है, एलसीयूज है, जिसमें कि टैंक्स और मैन ये सारे एट अ टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, और वी आर कैपेबल ऑफ दैट। बट वही कहूंगा कि नॉट इन दी रियल सेंस जो एक्सपेडिशनरी फोर्स कहा जाए, कि अगर हमें कहा जाए कि आप ब्रिटेन के कोस्ट पे जाके अपना लैंडिंग शिप्स भेजिए, तो वी डोंट डू दैट। वी हैव अवर प्लान्स फॉर सेंडिंग आवर फोर्सेस ऑन एनिमी लैंड्स, हमारे जो इमीडिएट एनिमीज है वहां पे, ना कि फार अवे प्लेसेस पे। वी आर रेडी। सी, अमेरिका और इन सब कंट्रीज में क्या होता है कि देयर इंटरनल सिचुएशंस आर वेरी प्रीटी मच अंडर कंट्रोल बाय द देयर आर्म्ड फोर्सेस। यहाँ पे पुलिस भी मिलिटराइज्ड है, यू नो दैट, कि पुलिस इज हेवीली मिलिटराइज्ड इन यूएस, सो दे आर वेरी मच कंट्रोल्ड इंटरनली। बट when they are projecting, so everything is used for projection, even though they have very small backup. There is nothing. If an American soldier goes, there is nothing in the back. Whatever they had is in Afghanistan now. So that's how they work. So if you work on that principle, then Indian numbers are very high. And there was a talk of reducing the force and making it force multipliers, which doesn't work. Now Russian and Ukraine war has shown that you need power on the boots on the ground. So you need numbers also. So is there a plan to increase the size of the forces? No, we are fine with the 14 lakh army and the 1.5 lakh air force and 60,000 navy. बट ये कहूंगा कि ऑन दी अदर साइड, अगर ऑक्यूपेशन की बात की जाए, तो हमारे पास सेंट्रल पैरा आर्म फोर्सेस है, सीएपीएफ है, जो कि सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, पुलिस फोर्सेस है, असम राइफल्स है, क्वाइट अ लॉट ऑफ फोर्सेस आर देयर, जो कि जिन्हें की सेंट्रल पैरा आर्म फोर्सेस कहा जाता है। सो इफेक्टिवली अगर देखा जाए, जो लोग की पीपल हु कैन, who are armed, who are able to use the arms effectively or in active service other than the Indian Army, उतने ही लोग, 14-15 लाख लोग हमारे पास सेंट्रल पैरा आर्म फोर्सेस में भी हैं। तो इट्स quite a lot of force। और मुझे लगता है कि it is very tough to maintain such a huge force and to so इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि, आई डोंट थिंक कि हम और रिक्रूटमेंट करेंगे। हम और एजिलिटी की तरफ जा रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन की तरफ जरूर जाना चाहिए, but not towards recruiting. So Mananji, thank you so much for sharing. You have served in the armed forces, and my salute to you, respects to you. And for all the viewers who are watching, one of the questions which has come from the viewers is that why do you think the Indian armed forces and American armed forces are not cooperating for action in Ukraine and Russia? This question has come from the audience. See, US is never going to send their own men on battleground Russia, on battleground Ukraine. The other thing is, India is a friend of Russia, so India will never send its men fight against Russia. The other thing is, India never sends expeditionary forces. India never sends its forces to fight another country's war. We may support both the countries morally, but we never send our men abroad. Dusra, we have been doing. It's not that we are not friendly with the US. हमारा यूएस के साथ बहुत फ्रेंडली रिलेशंस रहा है, जॉइंट एक्सरसाइजेस हम सालों से करते आए हैं, एंड बी इट द नेवी, बी इट द एयरफोर्स और द आर्मी, we have been functioning together with the US since ages, I must say. So we are a friendly country, but the doctrines, our war doctrines, are quite different from each other. So this is it. Thank you so much. And also, I have heard that India doesn't fight any wars without the UN call for a war. Otherwise, India doesn't send its troops anywhere. That's a policy of Indian state. So anything outside the UN, India doesn't usually participate. But peacekeeping missions, India is the number one peacekeeping forces. They supply the maximum manpower to UN peacekeeping forces. Even today, their forces are deployed in Africa and
many places of the world. I don't even know the list, entire list. So thank you so much, Officer Manan Bhatji, and thank you for all the viewers for watching and asking good questions. Namaste. Thank you. Thank you.